Good afternoon, everyone. In the last class, I did talk about the concept of an ellipse as one of the conic section. We also learned about the basic equation, the two different types of ellipse, the horizontal one as the type 1 and the vertical one as the type 2. So quick recall of the formulas related to the horizontal, say, ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, and the main condition here is a is greater than b, and in a case of a vertical ellipse a is less than b. So this is my type 2 ellipse. Also, I mentioned that if you look at the NCERT, the formulas given in NCERT may not match with this. Right. So at least the choice is yours. If you are following that, that is absolutely okay. But I prefer to use the tabular representation, the way formula to be learned in following manner, because in this case, I just need to go about only two changes from X to Y interchange and from A to B interchange logically. In the last class here also I did talk about, say, a given equation of an ellipse. You need to find out its eccentricity, length of major axis, vertices, foci, directrices, and latus rectum, and so on. So we used the following formulas. Now let us move ahead and consider few more problems based on ellipse. They are from your NCERT book only. Now, instead of a direct equation given, you are to find the equation of the ellipse. So, some properties like vertices and foci, they are known to me. In all the three questions, 10th, 11th, and 12th, same situation. You are provided with the vertices and the foci. You need to now get the equation of an ellipse. So, let's consider question number 10th. Vertices plus minus 50 and foci is at plus minus 4 comma 0. Clearly this is type 1 ellipse because vertex and foci, they are at the x-axis. So this is type 1. So type 1 means this is of the form x square by a square plus y square by b square is equal to 1 with the condition a is greater than b. Now, for the following ellipse, we know the vertex is actually given by plus minus a comma 0. Again, check out the formula list. टाइप 1 है, ये तो डिसाइड हो गया, और अब इस केस में वर्टिसेस होता है प्लस माइनस a 0. So when I compare with the given vertices, it clearly gives me the value of a equal to 5. Simple comparison. Again, the vertices of foci, they are given as plus minus 4 comma 0, and we already know it is plus minus ae comma 0 for such type of an ellipse. So plus minus ae comma 0. When we compare, AE will equal to 4. Now, A is already 5. So I will put the value of A and I'll get the value of E as 4 by 5. Also, we know the eccentricity of an ellipse is always less than 1, which is verified also here. Now, what exactly is required? A is already with me. I only need B. I only need B. How I am getting the value of B now? Look at the first formula.
b square equal to a square into 1 minus e square. So let me use this formula, b square equal to a square into 1 minus e square. Substitute the values a square and 1 minus e square. Like this, a and e already are available with us. So 25 into 1 minus 16 by 25. 25 into, when I take the LCM, 9 by 25, or in simple word, 25 cancel and b square is 9. I can get the value of b as plus minus 3 and b cannot be negative. They are representing the length. So b आ गया 3. Therefore, finally, required equation of ellipse would be x square by a square. A square का मतलब 5 square. A is 5 and b square मतलब 3 का square, or in other word, final answer x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1. I hope the basic idea is clear to all of you. Rest 11th and 12th, you can always do it in your homework. Specifically, 11th question, this is the ellipse of the type 2. So for 11th question, following table, these formulas will be used. The concept will remain the same. Check out this question. 13th and 14th, both are similar. So I have solved 14th question here. Check out the solution. अब आपको क्या गिवन है इलिप्स के बारे में? एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस पता है 0, प्लस माइनस √5 और एंड दिया है ऑन दी वाई एक्सिस. अगर किसी भी इलिप्स का एंड कहा जाएगा वाई एक्सिस, एंड माने ये हो गया, ये इसका एंड आ रहा है जो अलोंग मेजर एक्सिस दिया हुआ है. और एंड ऑफ द माइनर एक्सिस वो क्या बता दिए हैं, प्लस माइनस 1, 0. So that simply means this is 1 and this is √5 like this. So I have the values of a with me, 1 हो गया and b कितना हो गया, √5. At the same time, now in this case a is less than b. So this is the ellipse of the type 2 only. To compare the formulas, ends gives me the vertices always. And once I have the values of a and b with me, बस आपको इस formula में put कर देना है a और b. You will get your required answer. Before we move on, everyone, now please mark your attendance. Now consider this question. Length of major axis given है और आपको foci के vertices given है. तो दो कंडीशन से देखिए कैसे we can proceed. पहली बात, फोकस मेरा कहाँ गया, इसके ऊपर. फोसाई जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक्स एक्सिस के अलोंग होने का मतलब
हम बात कर रहे हैं सिंपली टाइप 1 के इलिप्स की, क्योंकि टाइप 1 के इलिप्स पे ही फोसाई होता है ऑन एक्स एक्सिस। तो एक तो ये जजमेंट हो गया कि हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड फार्मूला मैंने सोचना शुरू करा। फोसाई क्या होता है टाइप 1 का? प्लस माइनस AE,0 और वो दिया हुआ है प्लस माइनस 5,0। कंपेयर करा, AE की वैल्यू आ गई 5 के इक्वल। नेक्स्ट बात हो रही है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस 26 बताया है, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब ये डिस्टेंस होता है एंड पॉइंट से लेकर। V1 अगर वर्टेक्स है, V2 अगर वर्टेक्स है, तो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है V1 V2, दिस रेफर टू एज द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो वो एक्चुअली 2a के इक्वल हो गया। तो 2a आपको दिया हुआ था 26, इससे मुझे a की वैल्यू मिल गई 13। बस अब तो यूजुअल मेथड, a की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दिया, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। और याद रखिए इक्वेशन में मुझे a और b की रिक्वायरमेंट है। a ऑलरेडी है, आई नीड b, तो b निकालने के लिए आई विल मेक यूज ऑफ दिस फार्मूला। तो अब ये तो आपको याद रखना है, दिस पर्टिकुलर फार्मूला है। बट अब इस केस में भी थोड़ा ध्यान से सोचिए। आफ्टर दिस वन वे आपने वैल्यूज को चलो पुट करने का सोचा, बट यहां पर अनलेस यू ओपन द ब्रैकेट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ गया, और ए ई को कंबाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ए ई मुझे 5 गिवन है डायरेक्टली, तो ए ई की वैल्यू पुट कर दिया। जस्ट चेक आउट द कैलकुलेशन फर्दर, उससे b की वैल्यू आ गई 12, सब्स्टिट्यूट कर दिया a एंड b की वैल्यू, योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। चेक आउट दिस क्वेश्चन, जैसे 18th का हिंट दिया हुआ है, b आपको 3 दिया है और c 4 दिया है। एज आई ऑलरेडी मेंशन, एनसीईआरटी में c नोटेशन यूज किया है फॉर AE। आई नॉर्मली राइट AE ओनली, तो AE एक्चुअली c के इक्वल होता है, और वो दिया हुआ है आपको 4। तो बस अब आपको इन कंडीशंस को, इसे और इसे यूज करना है। साथ में कह रहे हैं सेंटर एट ओरिजिन, हम स्टैंडर्ड एलिप्स ले रहे हैं तो सेंटर तो हमेशा हमारे लिए ओरिजिन पर ही रहेगा। फोकाई जो हैं वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस पर हैं, तो इससे मुझे इन्होंने सारा हिंट ऑटोमेटिकली दे दिया है कि किस तरह के एलिप्स की बात हो रही है, टाइप 1 वाला एलिप्स। सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1, और बाय डिफॉल्ट आप देख लेना ऑब्वियसली a मस्ट बी ग्रेटर देन b। तो a की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे वो कैसे निकलेगी? बस आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए, b की वैल्यू पुट कर दिया, और AE दिया हुआ है आपको, तो मुझे यहां पर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, AE दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूं, ओपन द ब्रैकेट कर देता हूं। तो ये आ गया AE का होल स्क्वायर, और अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, और AE की जगह 4 रख दिया। सो a स्क्वायर आ गया 9 प्लस 16 विच इज 25। तो रिक्वायर्ड आंसर हो गया a स्क्वायर 25 हो गया, b स्क्वायर ऑलरेडी मुझे यहां से पता है 9, hence this is the required equation of the given ellipse.
चलिए चेक आउट दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप है। 19th एंड 20th सिमिलर हैं। 19th क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या कहा है। इलिप्स की इक्वेशन बतानी है, सेंटर है 0 0 पर, वो तो स्टैंडर्ड टाइप का ही हो गया। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1। ये आपने इक्वेशन लेट कर ली है इलिप्स की। और अब ये इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस का मतलब बेसिकली इस इलिप्स की बात हो रही है, और इस केस में क्या हो जाता है, a इज लेस देन b। तो एक तो ये हमारा जजमेंट हो गया कि किस टाइप के इलिप्स की बात हो रही थी, एक्चुअली टाइप 2 वाला इलिप्स। एंड passes through the point 3, 2। रफली सोच लेते हैं, चलो ये होगा 3, 2 एंड 1, 6, कहीं ये होगा 1, 6। तो हाउ आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। कंडीशन, एक एक कंडीशन को उठाकर सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे, ए जो है 3, 2 लाइज ऑन दिस इलिप्स, तो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y को। तो x की जगह a रख दिया एंड y की जगह 2 रख दिया। मतलब ये वैल्यू जो x की जगह 3 और y की जगह 2, और 9/a² प्लस 4/b² इज इक्वल टू 1। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब कौन सा पॉइंट है, 1, 6, ये भी इसी पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन x² प्लस y² इज 1। तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं 1² हो गया 1, y² हो गया ये 36, so this is my second equation. So now I have two equations in two variables. बस अब आप उनको यूजुअल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2। easier way would be say equating the coefficient। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मतलब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/9। क्यों करा वो भी समझ आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 36/b² आ गया, ये भी 36/b² था। तो मैंने एक्चुअली b² के टर्म सिमिलर बना दी, इसे अगर थर्ड कह दिया। बस अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्ट करते ही 81/a² माइनस 1/a², 80/a² दे देगा, और 36b² कैंसल, 9 - 1 8 आ जाएगा, और a² की वैल्यू आ गई 10। a निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे तो a² से ही मतलब है। a² आ गया 10। अब तो आप कहीं पर भी इस वैल्यू को यूज कर लीजिए। तो यूजिंग इन इक्वेशन 1, 9/10, a² की जगह मैंने लिख दिया 10 एंड प्लस 4/b² इज 1,
सॉल्व करते हैं। 4/b² आ गया 1 माइनस 9/10 और 4/b² इज 1/10 और b² आ गया 40। Therefore required इक्वेशन क्या हो गई? x² a² की वैल्यू 10 लिख दिया, y² which is 40 and equal to 1. Your required answer. ध्यान से देख लीजिए। If you have any doubt, do let me know. Check out the similar question. Just the reason is, इसको मैं क्यों दिखा रहा हूं, यहां पर आप चेक करिए, ये सॉल्व जब आप करोगे 1 और 2 को, तो इस तरह का भी a² और b² आ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक सिंपल वही 16 और 25 ही मिलता है। So this is solved from NCERT book only. So check this out also. Any doubt to anyone? टोटल मार्क्स फाइनल टर्म वो वेटेज चलो बता दूंगा मैं। बाकी ऑन एन एवरेज आप ये सिंपल लगा लो, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स का इक्वल वेटेज रहता है, बहुत ज्यादा 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही होगा, but not a big much difference as such, though I will share that with you. Okay, everyone check this out. अब जो हम कॉनिक की बात करते हैं, दैट इज अबाउट दी हाइपरबोला। तो हाइपरबोला, अच्छा इस केस में एक मिनट, जब मैंने इलिप्स की बात करी थी, तो इलिप्स को डिफाइन करने का एक और वे होता है, वो वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूं वाया वीडियो, बट एक चीज को यहां पर और जरा ध्यान से अगर हम देखें, इलिप्स के बारे में मैं ले रहा हूं। एवरीवन चेक दिस आउट। मान लीजिए ये मेरा एक इलिप्स है, राइट। और अब इस केस में चूज एनी पॉइंट से pxy ऑन दिस एलिप्स। अब मतलब क्या होता है, इसके फोसाई मान लो इसका यहां है और यहां है। लेट्स से दिस इज f1, दिस इज f2। तो फोसाई का मतलब क्या हो जाता है कि अगर मैं ये डिस्टेंस निकालता हूं pf1 और मैं ये डिस्टेंस इसमें ऐड कर देता हूं pf2, राइट। तो f1 एंड f2 तो फिक्स्ड पॉइंट हैं, p is a movable point, so this sum is always a constant. So this way also we learn that how to define a conic ellipse, that it is a locus of a moving point in a plane such that its sum of distances from two fixed points is always a constant. So that way we defined the ellipse. अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट कोनिक
एज एन हाइपरबोला। तो हाइपरबोला क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स का मतलब लोकस कहते हैं इसे। सो इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, difference of whose distances from two fixed points in a plane is always a constant। तो अब की बार क्या होता है ऐसे में बेसिकली कि अगर दो पॉइंट्स हैं, फिक्स हैं ये F1 एंड F2, एंड देयर इज अ मूविंग पॉइंट Px, y, और अब अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम हमेशा वही एज्यूम करते हैं कि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो Pf1 माइनस Pf2 जो है ये हमेशा होता है एक कांस्टेंट के इक्वल। अब वो क्या है कांस्टेंट की वैल्यू और वो कैसे जनरेट होता है? सो लेट अस चेक आउट वन वीडियो। आई एम चेंजिंग द व्यू। So check this out. Please confirm is this video is visible and audible? Okay, thank you. Yes. आई शेयर द लिंक, आप फिर बाद में देख लेना। वॉइस में थोड़ा सा इशू रहता है इसमें ना।
I hope the basic idea is clear. Yes, check this out. So in case of hyperbola, what we have seen, the distance जो है PF1 and then PF2, their difference is always a constant, and it gives us the shape congruent to curves which seems similar to parabola, but as already mentioned, it's totally different kind of the curve. तो इस केस में चेक करिए, अगर इसके फोकस और फोसाई हो रहे हैं F1 एंड F2, यहां तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वही दिखाया है, अगर एक पॉइंट P1 ले लिया तो PF1 एंड PF2, अब बिगर डिस्टेंस PF2 है तो PF2 माइनस PF1, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अब वो आप एज्यूम कर लो 10 सेंटीमीटर है, लेट्स से। तो अगर अब मैं यहां बात करता हूं P3 की टर्म्स में, तो द रिलेशन विल बी, मान लो मैंने इसको कहा 10 सेंटीमीटर से, तो व्हाट अबाउट इन टर्म्स ऑफ P3 क्या लिखेंगे? यहां P1 था, P1 लिया था, तो अब P3, और इस केस में F1, P3 F1 इज अ बिगर लेंथ, तो P3 F1 minus P3 F2, yes, that will be 10 centimeter. कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, एज मेंशन्ड हेयर क्लियरली इन आवर सिलेबस, सेंटर फिक्स है, कैपिटल C से डिनोट होगा एज ओरिजिन 0 0। इस हाइपरबोला के कर्व ने, चेक दिस आउट, इस हाइपरबोला के कर्व ने जो ये गया है, लाइक दिस कर्व एंड दिस कर्व, सो दो डिफरेंट कर्व्स जा रहे हैं, ये मेरा हाइपरबोला है, और इस कर्व ने जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट किया है, एक्स एक्सिस को कहां कट किया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सो दे रेफर टू एज इट्स वर्टिसेस, जिसे हम कहेंगे से V1 एंड V2,
वर्टिसेस हो गया V1 एंड V2। सिमिलरली ऐसे ही फोकस तो हम बात कर ही चुके हैं, F1 एंड F2 जो फिक्स पॉइंट रहे थे। अब इस केस में जो आपके पास ये डिस्टेंस है यहाँ, ये एक्स एक्सिस जो है वो कहलाती है ट्रांसवर्स एक्सिस, नॉट द मेजर एक्सिस। इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस कहाँ था, बस यहाँ नाम बदलकर हो गया है ट्रांसवर्स एक्सिस। और वाई एक्सिस जो थी, वाई एक्सिस से इंस्टेड ऑफ माइनर एक्सिस यहां पर बस नाम बदल के क्या हो गया है, एज दी कॉन्जुगेट एक्सिस। सो ये टर्म भी याद कर लीजिए। और यहां वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट अभी बता देता हूं, ये हो रहा है a,0, ये हो रहा है -a,0, राइट। तो इसके जो इनके बीच का डिस्टेंस है v1 v2, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2a। बट यहां b कहां पर है, b डायरेक्टली हमें कॉन्जुगेट एक्सिस पे विजिबल नहीं होता है। वो यहां भी हो सकता है लाइक दिस, और वो यहां भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी एंड द फॉर्मूला। वो फॉर्मूलाज क्या है, दैट इज मेंशन्ड इन द लिस्ट, जो यहां पर अब आएगी आपके पास लाइक दिस। तो लिस्ट पे बाद में आते हैं फॉर्मूलाज की, पहले कुछ और चीजें भी देख लेते हैं रिगार्डिंग दी हाइपरबोला। सेम टर्मिनोलॉजी, एवरीथिंग वही, वर्टेक्स, फोसाई, एक्सिस का सिर्फ नाम बदल गया है, मेजर और माइनर की जगह ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट हो गया है। बाकी वही डायरेक्ट्रिसेस होंगी, तो वो ये ऐसे दो लाइंस निकल जाएंगी एज अ डायरेक्ट्रिसेस। फोकस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो जो है उसे कहा जाएगा लेटस रेक्टम। सारी टर्म वही हैं हमारे पास। तो सेंटर ऑलरेडी डिस्कस्ड 0 0, एक्सिस ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑलरेडी मेंशन्ड, सो दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस। नेक्स्ट वर्टिसेस बता दिया है v1 v2, जो यहां पर हमने लिखा है ये v1 v2। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a के इक्वल हो जाएगी, और डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई वो 2c के इक्वल आ जाता है। और c क्या है, डू नॉट फॉरगेट ae। सेम फॉर्मूला जो आपने इलिप्स में करे थे, exactly same formulas will be used here, just that eccentricity of the hyperbola is always greater than 1. Eccentricity of hyperbola is always greater than 1. और एक हाइपरबोला जिसमें a और b इक्वल हो जाए, प्लीज यहां पर सभी ध्यान से देखिए, इफ a hyperbola in which a is equal to b, that is known as equilateral hyperbola. इक्विलेटरल हाइपरबोला। और इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होती है। Why is it √2? That we will learn very soon. इसको निकालने का मेथड यूजिंग फॉर्मूला आने वाला है। So here is the formula list. Check this out. अगर मैं अब आपके सामने इलिप्स के फार्मूला के लिस्ट रख दूं, आप चेक करेंगे एग्जैक्टली यही फार्मूलाज इलिप्स के लिए रहे थे। और यहां पर भी हम दो तरीके की बात करेंगे इस तरह के हाइपरबोला की। ये देखिए, एक इस तरह का हॉरिजॉन्टल टाइप में आ गया, और टाइप 2 हो गया वर्टिकल टाइप। तो इनका डायग्राम नीचे मैंने दिखा दिया है। और इक्वेशन देखिए क्या हो रही है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। इलिप्स में क्या होता था, बीच में प्लस होता था, बस यही डिफरेंस है।
यहां बीच में माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। एक नेगेटिव साइन की वजह से टोटली कर्व बदल जाता है। फार्मूला एसेंट्रिसिटी का सिर्फ चेंज होगा, बाकी सारे फार्मूलाज एग्जैक्टली इलिप्स के जाने वाले हैं। मेक अ नोट इन द चेंज इन द फार्मूला ऑफ एसेंट्रिसिटी, क्योंकि यहां E ग्रेटर देन 1 होता है, इसीलिए 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह ये हो जाता है ई स्क्वायर माइनस 1। और टाइप 2 का जो इलिप्स हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू -1, दैट्स इट। अगेन, I am not using the formulas which are given in NCERT book. They are little bit complicated to understand. But if you are comfortable, आप कर चुके हैं उन्हें, there is no harm, you can always use that. But अगर फर्स्ट टाइमर हैं, बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं इस टॉपिक को, तो I will recommend use this only. So these formulas are very easy to understand and learn. इस फार्मूले को एक्सप्लेन एलेबोरेट करते हुए मैंने एसेंट्रिसिटी का भी फार्मूला यहां दिखाया है डराइव करके। और लास्ट थिंग, इक्विलेटरल हाइपरबोला के लिए कहा था ए और बी इक्वल होते हैं, तो मैंने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी, ए और बी इक्वल रख दिया, एंड हेंस आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी एज √2। So please make a note of this. इस टेबल को अब आपको याद करना है। Everyone, please mark your attendance in the chat box, and then you can leave the class. Thank you. Good day. Bye. चलिए, please leave the class.